Receive it on. Yes. Lord. Shall we pray? Almighty God, our loving, living Heavenly Father, thank you for giving us another day, new sunshine, new air, new opportunity, new everything, because thy word says that your mercies are new every morning. We thank you for calling us apart from our daily tasks, from the chores that we run about, to come into your presence, to that holy throne, which is throne of grace, prepared for us from eternity past to eternity future. We thank you for the beauty of the holiness of our God, whom we serve, we love. We are redeemed by his transaction power and the amount of debt he paid for our sin. We thank you, Father, for the washing and cleansing and keeping us alive, sanctified, and rectified of all our situations, and righteousness belongs to you. In that we trust that in our gathering together today as a church, you will bless us together. Meet us, Lord, according to our needs. We have various kinds of families, but you are the Lord, only one faith, only one baptism. And thy word says, we are yours because you have purchased us by your precious blood. We are very own of your possession and treasure. We thank you, Father. You have considered us in our low estate, calling us children of God. You have given us that power to assume, accept, and receive the glorious gospel of Jesus Christ in practical life, in our daily life, in all our movements in our life, Lord. We thank you. You are focusing on us, giving us that heavenly vision, that we will not be disobedient to your call, to which the church is meant to live as light in this world of darkness, life in the world of death. We thank you, Father. We bless you, Lord. Meet us together, Lord, in a special way with thy word. Also, when we sing praises and worship song, help us to do it with heart, within our soul, within our spirit. We'll commune with you. And thank you that you are going to hear our prayers according to your will. You will be answering us in due time with that power of glory in Christ Jesus. Lord, we thank you. Thank you, Lord, for the believers from various kinds of backgrounds. But meet us, Lord, according to your purposes in our life today. All the families, those who are joined, others will be joining, blessing out together. Be showers of blessing on us. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. आइए हम लोग स्तुति गाएंगे हिंदी में सॉन्ग नंबर 155 और तेलुगु में 206. विश्वासयोग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा. विश्वासयोग्य मेरे प्रभु, करुणा से बुलाया है और मुझे संभाला है, और मुझे संभाला है.
रक्षक तू ही था, मेरे किलों के चारों ओर मेरा रक्षक तू ही था। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, तू मेरा सच्चा साक्षी है। विश्वास योग्य तू प्रभु है, विश्वास योग्य तू प्रभु है। तू मेरा सच्चा साक्षी है, विश्वास योग्य तू प्रभु है, विश्वास योग्य तू प्रभु है। मेरा प्रभु सनातन का, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मेरा प्रभु सनातन का, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन के भाग को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजिया 49 चैप्टर, यशायाह नबी की किताब उसका 49 अध्याय 49 चैप्टर। हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। द बुक ऑफ आइजिया 49 चैप्टर, बहुत ही फेमिलियर जाना पहचाना वचन है, हम सब जानते हैं। उसको हम पढ़ेंगे। साम भजन का किताब उसका 49 अध्याय 49 चैप्टर वर्स 16। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बने रहती है। परमेश्वर बड़े वचन को आशीष करें, और सब्र के समय में हम सबको प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन करें और अगुवाई करें। छोटी सी प्रार्थना करेंगे सहायता के लिए। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, सब्र के समय एक बार फिर आपके चरण पे आने के लिए आपने सहायता किया। हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर हो प्रभु, यद्यपि हम कई बार अविश्वासी होते हैं, लेकिन आप विश्वास योग्य रहते हुए आप हमें सहायता करने वाला परमेश्वर, इसलिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए सब्र के समय में एक बार फिर मंडली के नए हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्रभु आप हमें सहायता करें, जो वचन के भाग को हमने पढ़ा सब्र के समय में, वचन के द्वारा हमसे बातें करें, प्रोत्साहन दे और हमें प्रार्थना करने की अगुवाई करे। मैं तुच्छ को भी आपकी पवित्र आत्मा में सौंपते हुए प्रभु आपकी अगुवाई, अनुग्रह और आशीष को चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। ये यशायाह का किताब में जो हमने पढ़ा वचन को, देख मैंने तेरे चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि में बना रहता है। यहाँ पर परमेश्वर अपने दास यशायाह के द्वारा अपने हृदय की बोझ को, अपने हृदय की उस परमेश्वर की महान प्रेम को, जो प्रेम का वर्णन हम मानवीय ज्ञान से कदापि नहीं कर पाएंगे, उस परमेश्वर के प्रेम को हमारी मानवीय समझ के हम उसको समझ नहीं पाएंगे, और उस परमेश्वर के प्रेम की गहराई को, ऊंचाई को, चौड़ाई को, लंबाई को हम कदापि हम नहीं ना पाएंगे हम लोग। क्योंकि जैसा हम वचन में पढ़ते हैं कि यिर्मयाह नबी की किताब के अंदर वहां पर 31 चैप्टर में, यिर्मयाह बुक ऑफ यिर्मयाह 31 चैप्टर वर्स 37 में यहोवा यूं भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके
और नीचे से पृथ्वी को नींव खोद कर पता लगाया जा सके, तब भी मैं इज़राइल के सारे वंश को अपने सब पापों के कारण त्याग दूंगा। यहाँ पर हम नीचे के भाग को हम नहीं पढ़ेंगे, ऊपर के भाग को जो मेरा दोस्त है, ऊपर में क्या कहता है कि परमेश्वर ने यदि आकाश को मापा जा सके और पृथ्वी के नींव को खोद खोद कर पता लगा, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के जो सृष्टि किया हुआ है आकाश और पृथ्वी, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को हम कदापि नहीं नाप पाएंगे। मैं गूगल में मैं ऐसा सर्च करा था, मैंने ये पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितना होगा करके, तो गूगल पे मुझे ऐसा मिला कि आज तक संसार के अंदर ऐसा कोई इंची टेप नहीं मिला है पृथ्वी को मापने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये पृथ्वी को मापना, उसकी जानना मनुष्य की समझ से परे है ये। तो जिस तरह परमेश्वर का जो सृष्टि आकाश और पृथ्वी को हम माप नहीं सकते हैं, उसके लिए अभी तक इंची टेप तैयार नहीं हुआ है, उसी तरह प्रभु का प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई को, उसकी महानता को, गहराई को कदापि भी हमारे मनुष्य के ज्ञान से उसको समझ नहीं पाएंगे हमको। इसीलिए यहाँ पर यशायाह नबी की किताब के अंदर यशायाह के द्वारा परमेश्वर बड़ी बोझ के साथ में कहता है, बड़ी हृदय की, ऐसा लगता है कि मेरा हृदय में बेदारक के साथ में प्रभु यहाँ पर कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि में सामने बनी रहती है। ये प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा है यहाँ पर? यशायाह के नबी के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को संकेत करके यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर क्यों परमेश्वर अपने हृदय से बड़े आदम मतलब उसको क्या बोलता है, बड़े खेद के साथ में, उदास के साथ में, या बड़े प्रेम से क्यों बोलता है? क्योंकि उसी का वचन पढ़ेंगे हम लोग, यशायाह की किताब 49 वर्स 14 में पढ़ेंगे। 49 चैप्टर वर्स 14। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। यहाँ पर सियोन कहता है कि वो क्या कहता है कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है करके, बड़ी वेदना के साथ में, बड़ी निराश होते हुए यहाँ पर सियोन कहता है कि अरे परमेश्वर ने हमको भूल गया है, हमको त्याग दिया है, हमको याद नहीं करता है करके यहाँ पर सियोन कहता है। प्रियो, हमारे जीवन में भी हम जब इस संसार में है, शरीर में है, हम भी कई बार ऐसा कहते होंगे हमारे मन के अंदर, क्योंकि हम शरीर में है, हमारे सामने अनेकों प्रकार के चुनौतियां सामने आता है, अनेकों प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता है, अनेकों प्रकार का बीमारियों का, रोगों का हम सामना करना पड़ता है। तो कभी कभी हमारे मन के अंदर भी शायद ऐसा भावना आता हो। मेरे मन में तो कितना बार आया था ऐसा भावना को, अरे क्यों ऐसा होता है, प्रभु ने मुझे क्यों त्याग दिया है, मैंने तो प्रभु के काम कर रहा था, प्रभु की सेवा में कर रहा था, मैं तो अच्छा ही काम कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है करके, ऐसे बहुत बार ऐसे सवाल को हमारे मन में आना अनिवार्य है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम शरीर में हैं, संसार में हैं। तो ऐसा प्रश्न, ऐसा शंका हमारे मन के अंदर आता है। तो जब यहाँ पर शिवन ने कहा कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है, तो ये जब बात आया सामने, तो परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा कहता है कि अरे, है ना, तो यहाँ पर एक बड़ा पाठ को आज हमारे लिए, आपके लिए भी है यहाँ पर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे हमारे ऐसे, जो हमें प्रभु ने हमें प्रेम किया है, हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया हुआ है, हमारे विचार पवित्र है, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे हमारे पवित्र विचार के अंदर, पवित्र मन के अंदर, हम कभी कभी ऐसे ऐसे दुष्ट विचार हमारे मन के अंदर आते हैं। अरे प्रभु ने मुझे भूल गया, प्रभु ने मुझे याद नहीं किया। तो यहाँ पर कितना एक आश्चर्य की बात है, आज परमेश्वर ने आज हमको उद्धार देके संसार में रखा है, इतने सालों से। हाँ, बम्बई में हम लोग यहाँ पर रहते हैं, गांव में, इतने सालों से प्रभु हमको लेके चला है, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल हमारे मन के अंदर आता है, क्यों? क्योंकि परिस्थिति के द्वारा, हमारे सामने चुनौती के द्वारा। तो ये जब आते हैं बातों, तो यहाँ पर परमेश्वर बड़ी प्यार भरी वचन से हमको फटकारता है। तो ऐसा
मैं समझता हूँ ऐसा कि हमें ऐसा शर्म आना चाहिए हमारे हमारे जीवन। जब हम प्रभु वचन को हम पढ़ते हैं, तो हमको शर्म आना चाहिए। जब प्रभु प्रेम से फटकारता है, यहाँ पर सिय्योन को फटकार रहा है परमेश्वर, अरे मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया है, मैं तुझे कैसे बोल सकता हूँ मैं? आज यही प्रश्न, आज यही बात है, परमेश्वर हमें प्रेम भरे वचन से हमको फटकारता है कि हे प्रियो, मैंने तुमको अपने बहुमूल्य लहू से खरीद लिया है। मैंने तुम्हें खरीदने के लिए मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा है। उसको क्रूस पर टंगाया है। उसने अपने प्राण को क्रूस पर दे के अपने लहू को बहाया है। उस बहुमूल्य लहू से, उस पवित्र खून से तुमको मैंने खरीदा है। तुम मेरे हो। तुम्हारे हृदय मेरा है। पवित्र आत्मा तुमको मैंने अभिषेक किया हुआ है। तो ये आज बात है, प्रभु हमारे लिए कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेलियों पर मैंने खोद के बनाया है। तो आज हमारे जीवन में भी प्रभु हमको सहायता करे। ऐसे विपरीत परिस्थिति के अंदर हम जब आते हैं, तो वचन को, प्रभु के प्रतिज्ञा को याद करेंगे हम। नहीं, मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं भूलेगा, मेरा प्रभु मुझे हमेशा मेरे प्रार्थना का जवाब देगा, करके हमें बड़े विश्वास के साथ में नम्र होते हुए हमें प्रभु की शरण में आना है। क्योंकि अगर मैं ऐसा शंका करता हूँ, तो मैं मेरा प्रभु के ऊपर या प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु की प्रतिज्ञा के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शंका कर रहा हूँ मैं। क्योंकि प्रभु कहते हैं, देखिए इब्रानी की किताब 13 अध्याय 5 में कहता है, बुक ऑफ हिब्रू 13 चैप्टर, इब्रानी की किताब 13 अध्याय उसका 5 वचन हिंदी में पढ़ता हूं मैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी का संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा तुमको मैं। तो ये प्रभु का प्रतिज्ञा है ये। तो जो ऐसा प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर हमें कैसे भूलता है? तो इसीलिए हमारे मन के अंदर कभी भी ये बात को आने नहीं देना चाहिए कि नहीं, प्रभु ने मुझे भूला है, त्यागा है। तो ये ऐसी जंग शंका आते हैं, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमें याद करना है। क्योंकि भजन का किताब उसका 41 चैप्टर में भी कहता है, भजन संहिता साम 41 चैप्टर, यहाँ प्रभु का वचन ऐसा कहता है, तब साम 41 चैप्टर वर्ष 41 चैप्टर वर्स 12, मुझे तू खराई में संभालता है और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। देखिए प्रभु का प्रेम देखे यहाँ पर। परमेश्वर हमें सर्वदा के लिए अपने सामने, अपने सम्मुख हमको स्थिर किया हुआ है। तो जिस परमेश्वर ने अपने दृष्टि के सामने, नजर के सामने हमको स्थिर किया हुआ है, उसी तरह परमेश्वर ने हमारी चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया हुआ है। तो वो परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, वो प्रभु का प्रेम हमें कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं तजेगा। शायद हमारी प्रार्थना के उत्तर में जल्दी या देर हो सकता है, विलंब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रभु ने हमको बोला है। इसीलिए है ना, यहाँ पर सियोन के बारे में परमेश्वर का दास के द्वारा यहाँ पर कहता है कि देख, मैंने अपने चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर परमेश्वर इस बात को हमको सिखाता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल है। प्रभु का हमारे साथ में रहना अटल है, कभी हमको त्यागेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं है। तो यहाँ पर एक बात और कहता है, देखिए मैं पढ़ता हूँ वचन को, डिटरनोमी की किताब 7 अध्याय वचन 9 के अंदर भी, डिटरनोमी व्यवस्था की किताब 7 चैप्टर वर्स 9 को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। 7 अध्याय वचन 9, यहाँ पर कहता है, इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। देखिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालन करता, उन पर करुणा करता रहेगा। जो हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के वचन को पालन करते हैं, संगति में निरंतर आते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे 1000 पीढ़ियों तक
अपनी वाचा को, प्रतिज्ञा को पूरा करता है और करुणा को हमारे ऊपर हमेशा ओढ़े रहता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर और एक बात कहता है, देखिए हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पर 49 चैप्टर वर्स 16 में एक और कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। परमेश्वर ने यहाँ पर ऐसा नहीं कहता है कि मैं तेरे नाम को मैंने लिखा है, नहीं कहता है। हमारा नाम तो ऑलरेडी परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है। जिस दिन हमने प्रभु को विश्वास किया, हमने ग्रहण किया प्रभु को, प्रभु के लहू से मेरे पाप अवगत होया है, उसी दिन मेरा और आपका नाम तो परमेश्वर ने अपने पुस्तक में लिख दिया है। वो तो और वचन और आगे कहता है कि वचन में कहता है कि जब हम माता के गर्भ में ही थे, तभी परमेश्वर ने हमारे नाम को उनकी पुस्तक में लिख दिया है। तो यहाँ पर प्रभु नाम के बारे में नहीं कहता है, मैं तेरे नाम को अपने हाथ में लिखा नहीं बोलता है। वो कहता है कि मैं तेरे चित्र को मैंने अपने हाथ में खोद कर बनाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, यहाँ पर एक बात कहते हैं, यहाँ पर देखिए कि देखो, बिहोल्ड, यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर ऐसे एक गवाही दे रहा है कि देखो मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने तेरे चित्र को खोद कर बनाया। इसका मतलब है हम हरेक को व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर ने हमारे चित्र को अपने हाथों में खोद कर बनाया हुआ है। हमारे नक्शा को उतारा है परमेश्वर ने, हमारे नक्शा को उतारा है। हमारा परिस्थितियों को, जो परिस्थिति हम सामना करते हैं, उसको प्रभु ने अपने हाथ में उतारा है। हमारा समस्या को, जो समस्या को सामना करने के द्वारा हमारा निराश होते हैं, हम हताश होते हैं, हम हताश होते हैं हम लोग, उस समस्या को भी परमेश्वर ने हमारे साथ में अपने हथेली में खोद कर बनाया हुआ है। हमारा पाप को भी, हमारा भूल गलती को भी, हमारा अधर्म को भी, छोटा मोटा गलती को भी परमेश्वर अपने हाथों में खोद कर बनाया हुआ है। और मैं ऐसे समझता हूँ कि हमारी कमजोरी को भी प्रभु जानता है कि मैं कहाँ पर कमजोर हूँ, मैं कहाँ पर मैं कमजोर पड़ता हूँ। हमारी कमजोरी को भी प्रभु ने हमारे हमारे साथ में अपने हथेली में खोद कर बनाया हुआ है। और हमारी इच्छा को भी, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, प्रभु जानता है। जिस तरह एक बाप अपने बेटे की इच्छा को समझता है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए, वो समझता है ना? वो तो इसीलिए हमें उनको क्या करना, हमें प्रभु हमारी इच्छा को भी परमेश्वर ने, है ना, अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। हमारे काम, मैं क्या काम करना मुझे करना है, हमारे काम को भी प्रभु ने अपनी हथेली में खोद कर बनाया हुआ है। हमारे कमी घटी को भी, मैं कहाँ पर लैक हूँ, मैं कहाँ पर हमारे कमी घटी को भी प्रभु ने अपने हाथ में खोद कर बनाया हुआ है। सब कुछ जो मेरे व्यक्तिगत तौर पे मुझे चाहिए, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ परमेश्वर ने अपने हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। उनके दृष्टि के सामने हम है, तो हमारा हरेक पीड़ा को, हमारे हरेक परिस्थिति को, हमारे हरेक बातों को प्रभु जानता है। इसलिए ऐसे विश्वास के साथ में, ऐसे बड़े प्रेम के नम्र होते हुए हमें प्रभु के चरण में आना है कि हे प्रभु, है ना, मैं शरीर में हूँ, संसार में हूँ मैं, है ना। इसीलिए हमें विश्वास के साथ प्रभु के साथ में आते हुए हमें प्रार्थना करना कि हे प्रभु, है ना, अगर मैंने कहीं ऐसी बातों को मेरे मन में लाया होगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। कितना प्रेमी प्रभु है, कितना दयालु प्रभु है, कितना सामर्थ्य प्रभु है। भजन बुक ऑफ आइजिया की किताब में कहता है कि बुक ऑफ आइजिया 44 चैप्टर, बुक ऑफ यशायाह नबी की किताब का 46 अध्याय, बुक ऑफ आइजिया 46 चैप्टर वर्स 4, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। ये परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए लेता हूँ। मैं जब समझता हूँ कि ये वचन मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा मेरा कल्पना करता हूँ मेरे मन के अंदर। मैं एक मंगलवार को दिन मैं जब बोईसर में गया था प्रार्थना करने के लिए, तो वहां पर हमारा जो बहन सुधा भी उनकी बेटी को लेके आया था वहां पर। तो प्रार्थना खत्म होने के बाद में चलो फिर उसके बेटी को लेके मैं उठाता हूँ करके मैंने लेके उनके घर से लेकर बोईसर तक उठा के जब मैं लेके आया, बोईसर में पहुंचा, वो चलते समय मेरा पूरा कमर टूट गया मेरा।
एक छोटी सी 6 महीने के बच्चे को उठा के लेके जब घर से स्टेशन तक मैं आया, सीढ़ी चढ़ा, नीचे उतरा, प्लेटफॉर्म में आया, तब मेरा कमर टूट गया। मेरा इतना कमर दर्द होने लगा कि उसको मैं लेकिन बैठ गया पूरा मैं। कितना ज्यादा था, मैं 10 मिनट चला होगा, 10 मिनट में चला होगा बच्चे को लेकर मैं। हम इतना अपने बच्चे को लेकर हम चलते तो हमारी कमर टूट जाता है, थकते हैं, उसको उठा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं तेरे बाल पकने तक तुम्हें उठाए रहूंगा। ये प्रभु का प्रेम है। जो ऐसा प्रेमी प्रभु है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया हुआ है, तो वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। केवल, है ना, हमें विश्वास के साथ में और नम्र होते हुए, दीन होते हुए हम प्रभु के चरण में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता है। इसीलिए एक वचन हम पढ़ के हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। हमारा प्रभु ने हमारी चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया हुआ है, कभी हमको नहीं त्यागेगा, कभी हमको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ऐसा प्रेमी प्रभु हमें अपने कंधे में उठाए चलता है हमेशा, है ना। तो ऐसा प्रेमी प्रभु के चरण में हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ में नम्र होते हुए। एक और वचन मुझे मेरे ध्यान में अभी प्रभु लेके आ रहा है, पवित्र आत्मा। वहां पर अगर पढ़ेंगे डिटरमी की किताब 1 अध्याय में है, डिटरमी व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय में, वहां पर भी देखो प्रभु का प्रेम देखिए वहां पर कितना ये प्रेमी हमारा प्रभु है। व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय के अंदर, व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय के अंदर वचन 31 to 33 तक पढ़ेंगे ना, वहां पर एक बात वहां पर प्रभु का वचन कहता है। 31 मैं पढ़ता हूँ। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उससे सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। देखिए यहाँ पर मूसा कितनी बड़ी बात कहता है। इतने कम से कम 30 लाख से ज्यादा लोग, इजरायली लोग वहां पर मिस्र से निकल के बाहर आए थे। यहाँ पर मूसा कहता है कि तुमने जंगल में भी देखा जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान तक पहुंचने तक, मतलब यहाँ तक मिस्र से लेकर यहाँ तक पहुंचने तक, क्या बोलते हैं वहां पर, परमेश्वर यहोवा ने हमको हमारे सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा है। देखिए एक पुरुष, एक आदमी अपने बच्चे को कंधे में उठाता है, उसी तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को उठा के मिस्र देश से लेकर यहाँ तक प्रभु ने लाया हुआ है। वैसा परमेश्वर हमारा प्रभु है। इतना ही नहीं, देखिए वचन 33 में कहता है, वचन 33, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि तेरे डालने के स्थान तुम्हारे ढूंढे। देखो परमेश्वर ने केवल उठा ही नहीं रहा, प्रभु परमेश्वर ने इजरायलियों के आगे आगे जाकर उनके घर बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए स्थान को भी ढूंढ रहा है परमेश्वर। तो इतना प्रेमी प्रभु है। मैं पढ़ता हूँ ना, मैं अचंभव होता हूँ प्रभु, मैं पढ़ता हूँ तो अरे इतना प्रेमी परमेश्वर उठा ही नहीं रहा है, लेकिन उनके आगे आगे जाकर उनका आगे कहाँ पर तंबू टांगना है, कहाँ पर तंबू बनाना है, कहाँ पर उनको डेरा डालना है, वो जगह भी प्रभु ढूंढता है परमेश्वर। तो इतना प्रेमी परमेश्वर हमारे साथ में है, तो हमें क्यों अविश्वास में होना है। प्रभु हमको सहायता करेगा, है ना। भाई पॉल जैकब ने एक बार कहा था वचन के अंदर, अभी भी मुझे हमेशा याद है वचन को, मैं परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे चरवाहा बन के आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करता है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे पिता बन के हमारे पीछे पीछे चल के हमारी रक्षा करता है। और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ में सहकर्मी बनते हुए काम करता है। ऐसा प्रेमी प्रभु हमने पाया हुआ है। तो आइए बड़े विश्वास के साथ में, नम्र बनते हुए, दीन बनते हुए हम प्रभु के चरण में आएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता है। और इस आज वर्तमान संसार में जो हम लोग हैं, बहुत ही समस्या भरे संसार के अंदर, इस संसार में प्रभु हमको निश्चय उठाए चलता है। प्रभु सहायता करे, हम सबको आशीष करे। Brother Gabriel. ये जैसे आपको बोझ है प्रभु के लोगों के विषय में, प्रभु के प्रेम को स्मरण करते हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके जो बपतिस्मा लिए हैं बोरीवली के, जो हमारे 5 बच्चे हैं, उनके साथ में बाकी जो 2 पालघर से और 3 पालघर से और 5
बस ऐसे उनके लिए विशेष प्रार्थना करिए कि प्रभु उनको संभाले, कई परीक्षाओं में से और तकलीफ में से जब प्रभु उनको ले जाएगा वो स्थिर रहने के लिए। और आने वाले इतवार कल की जो सेवकाई के लिए, बम्बई के लिए, बोरीवली के लिए और इत्यादि प्रांतों के लिए, और साथ में हम आने वाले क्रिसमस के समय में मतलब 4 तारीख से लेके ओपन एयर शुरू होने वाला है नवापुरा में, और उसके बाद फिर नगर के पास में निवासा में होने वाला है, उसके बाद मुंबई शहर में होने वाला है, और बोरीवली जवानों के साथ मिलकर स्कूल्स में, कई स्कूल्स में 16-17 तारीख से स्कूल्स में, सोसाइटीज में, ऑर्फनेजेस में होने वाला है। उसके लिए विशेष प्रार्थना करिएगा, प्रभु अपना महत्वपूर्ण काम को कर सके, उसके विषय में विशेष प्रार्थना करिएगा। और हमारे मंडली में जो बीमार है, जिनको चंगाई की जरूरत है, उनको आप जानते हो, उनके लिए विशेष प्रार्थना करिए। विशेष करके 13 तारीख को भाई जोसेफ गोरे का ऑपरेशन है, उसके लिए प्रार्थना करिएगा। और बुजुर्ग बड़े भाइयों के लिए भी प्रार्थना करिए, जो परिवार समस्या में से जा रहे हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना करिएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो 1 मिनट हम देते हैं, आप बताइए, वरना हम प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। कोई किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? तो आइए प्रार्थना शुरू करते हैं, एक भाई और एक बहन। अंतिम प्रार्थना, मारी और देर यस ब्रदर, मैं हूँ ब्रदर। यू कैन क्लोजिंग प्रेयर 8 o'clock. Loving Heavenly Father, God of our